شاہ صاحب کے گھر لنگر حسینی تیار ہے. وہ تمام مومنین جو یہاں پر موجود ہیں اور لنگر کرنا چاہتے ہیں ذوالفقار شاہ صاحب کے گھر تشریف. قریب آئیں دیکھ کے فرمین مسافر سارے وطن کو کیوں روندے نہیں. اے مسافر ہے شہزادہ پہلے تو تعارف کرا جو تو پاوے دور دے ملک دا وسا آیا تا تہاڈے دربار کی وقت ہم جو آلا
اے مجالس اے مومن اے مسلمان بھیڑا سب مومن ہومن جیڑا کہیں دی فوت کی شامل تھیوے او انہاں دا رشتہ دار ہوندے جیڑا شامل تھیوے انہاں کو عزیز ہوندے جیڑا شامل تھیوے انہاں دے منن والا ہوندے بے مرشد بے مومن نہ منن والا دشمن اہل بیت کہیں امام حسین دی مجلس سے شریک نہیں تھی سکتا ہاتھ کھڑا کرو کوئی ہے آگے جو نہ غلط ہے مومن شریک تھی دے نا ہاتھ کھڑا دے سے لبیک کرو کہ اہل بیت دے جنہوں نے دشمن نے اہل بیت ہے انہوں نے تے لعنت ہے دشمن اہل بیت پر لعنت دشمن اہل بیت پر لعنت ہم آج مناتے ہیں دشمن آل محمد پر ہم میلانت کا برساتے ہیں آؤ ہم ایک فتویٰ پوچھے عالم سے جو فاضل ہو بندی نساء کا پانی کرنا کس مذہب میں شامل ہے شاہ و گدا سب ان کے در پہ سر تسلیم جھکاتے ہیں دشمن آل محمد پر لعنت کا برساتے ہیں او یزید نہ تیری کفن نہ تیرا خاندان نہ کہیں چاول والا نام الٹی ہو گئی سب تدبیریں بیعت کے عیاروں کی دیکھ ایاد دلوں پہ حکومت جنت کے سرداروں کی شاہ و گدا سب ان کے در پر سر تسلیم جھکاتے ہیں دشمن آل محمد پر میلانت کا برساتے ہیں چہلم کربل کے شہداء کا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری درود باواز بلند شاہ مامنین کدے دے آو جو چہلم دا پرسا دیو دیکھا سمجھے دے انہاں دے من نعرہ رہے بیٹھے اور جناب جب ممبر ہوں گے جو مومنین جہاں تک میری آواز جا رہی ہے تشریف لائیں جس طرح ہمارے بزرگ لالا اکبر شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ یہ تدہ ہے یہ پرسہ ہے جو آپ نے دینا ہے مولا مظلوم کربلا کو آپ تشریف لیں اپنی اپنی جگہ کو جہاں پہ یہ صفیں بچھی ہوئی ہیں صف اعضا یہاں تشریف رکھیں مجلس شروع ہوا چاہتی ہے اور آج کی یہ مجلس بسلسلہ چیلم مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام 20 سفر المظفر بمطابق آج 8 اکتوبر 2020 یہ عام ریکارڈ رہے کہ مجلس دربار چوک نوشا صاحب بخاری منعقد کی جا رہی ہے اور یہ مجلس خیر علامہ ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے منعقد ہوتی ہے اور قبلہ علامہ ڈاکٹر التجا کاظمی صاحب گزشتہ ایک عشرہ سے یہ سعادت ہے انہیں اور ہمارے لیے بھی یہ باعث سعادت ہے کہ قبلہ علامہ صاحب جو یہاں پہ تشریف لاتے ہیں اسلام آباد سے اور وہ یہ مجلس سے ادا سے خطاب فرماتے ہیں اور ان کا جو بیان ہوتا ہے اس سے ہم مستفید ہوتے ہیں تمام مومنین تشریف لے آئیں مجلس اعلیٰ شروع ہوا جاتی ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت بآواز بلند کثیر تعداد مومنین کی موجود ہے نعرے کی آواز اتنی نہیں ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بلندتر صلوات دشمنان اہل بیت اور ذکر اہل بیت کے دشمنان پر لعنت قبلہ علامہ ڈاکٹر سید التجا کاظمی صاحب پھر بھی اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرمائیں اپنے اپنے حوائج شدیہ کی برابری کے لیے پھر سے اپنی زبانوں کو درود سے معطر فرما لیں بلند آواز سے درود فرمائیں یہ مجھے ایک اعلان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ انشاءاللہ شام کو
کربلا حسینی یہ اس وقت کی مجلس جو دربار نور شاہ صاحب بخاری منعقد کی جا رہی ہے، یہ خیر العمل ٹرسٹ کے پلیٹ فارم سے منعقد ہو رہی ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ العزیز جب جلوس ہمارا اپنے مسدرہ روٹ پر چلتے ہوئے کربلا چوک منیر شہید اختتام کو پہنچے گا تو ٹھیک 5:30 بجے کی بلال احمد صاحب زیب ممبر ہوں گے، اور وہ مجلس انجمن صاحب کیا اسنا عشریہ کے پلیٹ فارم سے منعقد کی جائے گی۔ تمام مومنین کرام وقت کی پابندی کریں، ٹھیک 5:30 بجے کربلا حسینی چوک منیر شہید حیثیت و سلامتی کی بلال احمد صاحب اور تمام مومنین بلند تر صلوات۔ اپنے اپنے حوائج شریعہ کی برابری کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اس مجلس کے اعضاء کی قبولیت کے لیے اور بانیان مجلس کی توفیقات خیر میں اضافے کے لیے اپنی زبانوں کو درود سے مرتب فرمائیں، بلند آواز سے درود پڑھیں۔ اس ذکر کے وارث یوسف زہرا امام زمان علیہ السلام کے ظہور پر نور میں تاجیل کے لیے پھر اپنی زبانوں کو درود سے مرتب فرمائیں، بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائل ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وابتدى بالصخور میدان أرضه والصلاة والسلام على سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا سید المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین اللہم احبب من احب حسین صلی اللہ علیہ محمد خداوند عالم آپ تمام احباب کا اس چہلوں میں سید الشہداء کے انعقاد میں شرکت کرنا اپنی بارگاہ میں عظیم عبادت کے طور پر شمار فرمائے، اور جو بھی آج محسن انسانیت سید الشہداء فرزند جناب محمد مصطفیٰ کا چہلم منانے آئے ہو، میری دعا ہے کہ سوائے اس غم کی کوئی غم نہ دیکھو۔ جتنے بھی آپ حوائج شریعہ ہیں پروردگار اس ذکر کے وسیلے سے پورے فرمائے، اور میں یہ امید کرتا ہوں کہ آپ میرے حق میں بھی دعا کریں گے کہ میں گزشتہ 10 سالوں سے محرم کے بھی اور چہلم کی یہاں کی مجلس بھی اور کربلا منیر شہید چوک کی مجلس میں بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہوں، اور 10 سال تھوڑا عرصہ نہیں ہے، یہ آپ لوگوں کی محبت ہے اور محمد و آل محمد کا فیضان و کرم ہے کہ مجھ حقیر کو 10 سالوں سے یہاں پہ آپ کی خدمت کا موقع مل رہا ہے۔ سوائے اس غم کے کوئی غم نہ دیکھو، اور پروردگار کے حضور دعا ہے کہ اس ذکر کے وارث کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہمیں امام کے قدموں میں شہادت عطا فرمائے۔ اللہ کی رائے وہ بے عیب کتاب
कुरान जो लारैब भी है, रैब भी है, जिसमें किसी किस्म के कोई शक की गुंजाइश नहीं है। ऐसी किताब कि जिस किताब में कोई शक नहीं, कोई ऐब नहीं, और जो सरचश्मा हिदायत है, कुरान सरचश्मा हिदायत। इसी किताब में से मैंने एक आयत की तिलावत का शरफ हासिल किया, और साथ ही जिस पर ये कुरान नाजिल हुआ, जिसने इस कुरान को पहुंचाया, जो मिस्ताक के वमा यंतिक़ु अनिल हवा है, जो खुद से कुछ भी नहीं कहता, जो कहता है वो हुक्म इलाही होता है। इस कुरान की एक आयत को आपकी खिदमत में मैंने अर्ज किया, और वारिस कुरान जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा के एक फरमान को भी आपकी खिदमत में इसलिए अर्ज किया है ताकि ये बता दें कि मजहब शिया की बुनियाद या अल्लाह की किताब कुरान पर है या उसके रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा के फरमान पर है। हम जो भी कहते हैं या कुरान होता है या मोहम्मद मुस्तफ़ा का फरमान होता है। हम जो कहते हैं या कुरान से साबित है या मेरे मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। हम जो करते हैं ये भी या कुरान से साबित है या मुस्तफ़ा के फरमान से साबित है। सबब क्या है? क्योंकि अल्लाह कुरान में कह रहा है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी, कि ये जो मेरी मोहब्बत के दावे करने वाले हैं, जो नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, हज करते हैं, ज़कातें देते हैं, इसलिए ताकि साबित करें कि हम अल्लाह से मोहब्बत रखते हैं। और जो आपकी मेरी तरफ है, मेरा सिर्फ 30 मिनट टाइम है, जिस वक्त में मैं आपको कुछ गुजारिशात आपकी खिदमत में करूंगा। हर मुसलमान की ख्वाहिश है, क्या ख्वाहिश है? क्यों नमाज पढ़ते हो, क्यों रोजे रखते हो, क्यों हज करते हो, क्यों ज़कातें देते हो? ये जितने भी अमाल साले हैं ये क्यों है? कुर्बतन इल्लल्लाह, ताकि अल्लाह राजी हो जाए। साबित करना चाहते हो हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, यही है मकसद, यही है। यही बताना चाहते हो कि हम अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, अल्लाह हमसे मोहब्बत करता है, यही बताना चाहते हो। लेकिन कुरान में अल्लाह क्या कह रहा है? कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह, कि अगर तुम अपने इस मोहब्बत के दावे में सच्चे हो, फत्तबिऊनी, तो मैं मोहम्मद की इत्तिबा करो। बोला कि अल्लाह ने यह कह दिया कि तुम्हारी मोहब्बत का दावा तब सच्चा है कि जब तुम मोहम्मद की इत्तिबा करते हुए नजर आओगे। अगर तुम में से कोई मेरे नबी की इत्तिबा करता हुआ नजर आएगा तो फिर हकीकत में वो अपने दावे में सच्चा है कि वो मुझ अल्लाह से मोहब्बत रखता है। और अगर इत्तिबा मोहम्मद नहीं है तो उसका दावा झूठा है। और फिर आगे चल के अल्लाह क्या कह रहा है कि मोहब्बत यकतरफा काफी नहीं है। यकतरफा मोहब्बत नुकसानदेह होती है, फायदे वाली नहीं होती। मोहब्बत तब फायदा देती है जब दो तरफा हो। कहा तुम अपने दावों में तब सच्चे हो कि तुम मुझे अल्लाह से मोहब्बत करते हो जब तुम मेरे मोहम्मद की इत्तिबा करोगे, तो फिर मैं अल्लाह भी युहिब्बुकुमुल्लाह हो, कि फिर मैं अल्लाह भी तुमसे मोहब्बत करूंगा। बस अब मोहब्बत एक तरफा नहीं होगी, दो तरफा होगी। पता चला अल्लाह से मोहब्बत का दावा भी उसका सच्चा है जो मुस्तफा की इत्तिबा करे, और फिर अल्लाह भी उससे मोहब्बत करेगा कि जो मोहम्मद मुस्तफा की इत्तिबा और इताअत करता हुआ नजर आएगा। अब जो भी इत्तिबा रसूल करेगा, अब देखिए ना, यहाँ पर भी बड़े ही मुजाहिद हैं, तौहीद परस्त कहते हैं हमसे बड़ा तौहीद परस्त कोई नहीं, कोई हमसे बड़ा तौहीद परस्त कोई नहीं, तौहीद के दावे। लेकिन अल्लाह ने इन दावों को, जितने भी तौहीद का दावा करने वाले हैं, जो भी अपने आप को मुसलमान कहता है, बल्कि आजकल तो ये हो गया ना, कहा कि या रसूलुल्लाह मदद न कहो, या अली मदद न कहो, या
इत्तिबा मोहम्मद मुस्तफ़ा सबूत है और दलील है कि अल्लाह से मोहब्बत करने वालों के लिए। अब अल्लाह ने हमें बता दिया कि तुम में से वही अपने दावे में सच्चा है कि जो मेरे मुस्तफ़ा की इत्तिबा करता है। अब इत्तिबा मुस्तफ़ा क्या है? मेरे नबी ने कहा नमाज पढ़ो, हमने पढ़ ली, इत्तिबा मुस्तफ़ा है। मेरे नबी ने कहा रोज़ा रखो, हमने रोज़ा रख लिया, इत्तिबा मुस्तफ़ा है। मेरे नबी ने कहा हज करो, हमने हज कर लिया। मेरे नबी ने कहा ये करो, इत्तिबा मुस्तफ़ा है। मेरे नबी ने कहा ये न करो, यानी मेरे नबी का अमर, यानी मेरे नबी ने जिस चीज को हुक्म दिया उस पे चलना इत्तिबा मुस्तफ़ा है, और जिससे रोका उससे रुकना इत्तिबा मुस्तफ़ा है। अब आज चहलम का दिन है, चहलम में सैयद शुहदा है। अब हम देखना ये चाहते हैं कि ये जो हुसैन से मोहब्बत का मुख्तलिफ अंदाज में शिया सुन्नी इजहार मोहब्बत कर रहे हैं, क्या ये भी इत्तिबा मुस्तफ़ा है या नहीं है? क्या ये भी इत्तिबा मुस्तफ़ा है या नहीं? अगर इत्तिबा मुस्तफ़ा है तो फिर आयत कुरानी के मुताबिक लफ्ज़ बदल कर कहूँ, यानी मोहब्बत हुसैन मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, शिया हो या सुन्नी हो। हुसैन से मोहब्बत के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि हुसैन से मोहब्बत इत्तिबा मुस्तफ़ा है, जिसका हुक्म मेरे मुस्तफ़ा ने दिया है। ना सिर्फ हुक्म दिया है बल्कि हुसैन से अमलन मोहब्बत करके हमें बता दिया है। कभी मदीने की गलियों में हसन और हुसैन को अपने कंधों पे बिठाकर दाईं तरफ की जुल्फ़े हसन के हाथ में, बाईं तरफ की जुल्फ़े हुसैन के हाथ में, नबूवत ये कह रही है कि जिस तरफ चाहो तुम मुझे मोड़ सकते हो। कभी बचपना है हसनैन का, मेरा रसूल वाजिब खुतबा दे रहा है और वाजिब जुम्मे के खुतबे को छोड़कर हसनैन को उठाकर, वक्त मेरे पास बहुत कम है, हसनैन को उठा के सहाबा के सफों को चीरता हुआ मेरा रसूल गया। जहां हसनैन थे वहां दोनों को उठा के अपने मिंबर पे बिठा के इज़हार मोहब्बत किया और दुनिया वालों को दिखाया, ऐ दुनिया वालों में मोहम्मद इसलिए वाजिब खुतबा जो छोड़ रहा हूँ क्योंकि मैं मुस्तफ़ा हसनैन से मोहब्बत करता हूँ और अपनी मोहब्बत को अमलन तुम्हें दिखाना चाहता हूँ कि अगर हसनैन आ जाए तो फिर मैं अपनी मर्जी से कोई काम करता नहीं। बस गया कि अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया है कि मेरे रसूल इस वाजिब खुतबे को छोड़ दो और लोगों को बता दो कि तू मुस्तफ़ा मोहम्मद अल्लाह का नबी इनसे कितनी मोहब्बत करता है। सबब क्या है? सबब ये है कि हसन और हुसैन वो है कि जिनकी वजह से ये जुम्मे के खुतबे भी बचेंगे, ये नमाजें भी बचेंगी, ये अज़ानें भी बचेंगी, ये कुरान की तिलावत भी इन्हीं के दम से होगी। अगर हुसैन के बना में कुर्बानी न देते, न नमाजें होती, न रोजा होता, न हज होता, न ज़कातें होती, न जुम्मे के खुतबे होते, न तेरा हज होता, न तेरा काबा होता, न तेरा तवाफ। मिंबर पे बिठाया और दुनिया वालों को कहा दो मैं हुसैन और हसन से कितनी मोहब्बत करता हूँ, दिखाना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। हाँ तो हुसैन, ये हुसैन है। और कभी अगर यही हुसैन तमाम कमालात जमा है, सबसे मदीने की मस्जिद नबवी है, मस्जिद नबवी काबे के बाद मस्जिद हरम के बाद सबसे अफजल मस्जिद है, ऐसी अफजल मस्जिद कोई नहीं। और नमाजी सबसे अफजल नमाजी, नमाज अहकाम दीनी सबसे अफजल इबादत नमाज, और नमाज में सबसे अफजल
रुकन सजदा, और इंसानी जिस्म में सबसे अफजल जो उज़्व है वो है पेशानी, और पेशानी भी आम नहीं, मेरे मुस्तफ़ा की पेशानी, मेरे मोहम्मद मुस्तफ़ा की पेशानी। अब मस्जिद नबवी जमा हो रही है, तमाम फजीलतें, मस्जिद नबवी है, नमाजी मेरा रसूल है और नमाज रहे हैं, वाजिब सजदा कर रहे हैं, पेशानी मुस्तफ़ा की कहाँ पे? ज़मीन मस्जिद नबवी पर, और उधर से हुसैन आते हैं पुश्त रसूल पर। हुक्म खुदा आता है मेरे नबी, उस वक्त तक सर नहीं उठाना जब तक हुसैन अपनी मर्जी से तेरी पुश्त से न उतर जाए। हुसैन अपनी मर्जी से उतरे तो तूने सर उठाना है। ये भी मेरा नबी हुसैन से इज़हार मोहब्बत कर रहा है और दुनिया वालों को बता रहा है, क्या दुनिया वालों, सिर्फ नमाज पढ़ लेना मेरी इत्तिबा नहीं है, रोजा रख लेना मेरी इत्तिबा नहीं है, हज कर लेना मेरी इत्तिबा नहीं है, सिर्फ कलमा पढ़ लेना मेरी इत्तिबा नहीं है, लब्बैक या रसूल अल्लाह कह देना मेरी इत्तिबा नहीं है, बल्कि हसन और हुसैन से मोहब्बत का मुख्तलिफ अंदाज में इज़हार करना भी मेरी इत्तिबा है। अब अंदाज मुख्तलिफ हो सकते हैं मेरे सुन्नी भाई, घरों में बैठ के, चाहे रोज़े आशूर हो या रोज़े चिहलम हो, आज का दिन घर में बैठ के भी अगर नियाज पकाकर मेरे मौला हुसैन को खराज तहसीन पेश करता है तो ये भी उसका इज़हार मोहब्बत है। अगर कोई मेरा सुन्नी भाई जुलूस में आकर बेशक मातम न करे लेकिन सबूत दे जुलूस में आकर, तो पता चलेगा कि ये हुसैन के साथ है और इस हुसैन से इज़हार मोहब्बत कर रहा है और रसूल की इत्तिबा में कर रहा है। अब जो इस तरह करते हैं वो इत्तिबा रसूल करते हैं। जुमला जाके सुनना मेरा, कि जो मुख्तलिफ अंदाज में हुसैन के जुलूसों में आकर इज़हार मोहब्बत करके इत्तिबा रसूल अंजाम देते हैं, उनका पता चल जाता है कि ये रसूल के साथ है और रसूल का इत्तिबा कर रहे हैं। और जो रसूल का इत्तिबा करता है, अल्लाह कहता है मैं उससे मोहब्बत करता हूँ, मैं उससे मोहब्बत करता हूँ। और फिर जो इन जुलूसों में रुकावट बनते हो, जो इन जुलूसों में रुकावट बनते हो, क्या वो इज़हार मोहब्बत कर रहे हैं, क्या वो इत्तिबा रसूल कर रहे हैं? तो पता चला कि जो भी किसी अंदाज में हुसैन का साथ देता है वो इत्तिबा रसूल करता है, और जो भी हुसैन के जुलूसों में रुकावट डालता है वो इत्तिबा रसूल नहीं करता बल्कि इत्तिबा शैतान और इब्लीस करता है। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी, मेरे हबीब कह दो कि अगर तुम मुझ अल्लाह से मोहब्बत का दावा करते हो तुम मेरी इत्तिबा करो। युहिब्बुकुमुल्लाह, कि अगर तुम मेरी इत्तिबा करोगे तो मैं अल्लाह तुमसे मोहब्बत करूंगा। वयग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम, और न सिर्फ मोहब्बत करूंगा बल्कि मैं तुम्हारे गुनाह बख्श दूंगा। अब अगर हुसैन की अज़ादारी, हुसैन से मोहब्बत इत्तिबा रसूल है तो नतीजे तुम्हारे सामने होने चाहिए। पहला नतीजा ये है कि जो भी इत्तिबा मोहम्मद मुस्तफ़ा में चाहे जो भी अंदाज अपनाए, चाहे जुलूस निकाल के आए, चाहे मातम करता हुआ आए, चाहे गिरिया करे, चाहे अलम को उठाता हुआ आए, चाहे ताजिया को लेकर आए, चाहे जुल्तना को लेकर आए, चाहे घर में हुसैन से किसी भी अंदाज में इज़हार मोहब्बत करे, तो वो हकीकत में इत्तिबा मुस्तफ़ा अंजाम दे रहा है। तो फिर उसके लिए दो नतीजे हैं। क्या नतीजा? पहला नतीजा ये है कि इस इत्तिबा के नतीजे में अल्लाह उससे मोहब्बत भी करेगा, और दूसरा नतीजा ये है कि वो कितना ही गुनहगार क्यों न हो, परवरदिगार उसके गुनाहों को बख्श देगा। तो पता चला आज़ादारी इसीलिए तो शुहदा वो है कि जहाँ पे बड़े बड़े गुनाह बख्श दिए जाते हैं। इसीलिए सादिक़
मौला वो गुनाह करते हैं, उनसे गुनाह सरजद होते हैं। कहा हाँ होते हैं, लेकिन वो साथ कुछ ऐसे अमाल बजा लाते हैं कि जिनकी वजह से उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और एक और हदीस भी है, वो क्या है कि हुब्बु अली हसनतुन, कि अली की मोहब्बत ऐसी नेकी है, तवज्जो रहे, कि जिसके साथ कोई बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती। बुग़्ज़ अली सय्यअतुन, और बुग़्ज़ अली ऐसा गुनाह है कि जिसके साथ कोई नेकी फायदा नहीं पहुंचा। मोहम्मद और आले मोहम्मद की मोहब्बत ऐसी नेकी है कि जिसके साथ बुराई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, और इनसे बुग़्ज़ ऐसी बुराई है कि जितनी भी नेकियां करो उनका फायदा कोई नहीं है। और सादिक़ आले मोहम्मद ने कहा कि हमारे शिया जन्नती हैं, क्यों? इसलिए कि वो अमाल ऐसे बजा लाते हैं कि जिनकी वजह से उनके गुनाह बख्श दिए जाते हैं। और मेरा ईमान है कि जो भी अज़ादारी सैयद शुहदा में दिल से आता है, इत्तिबाए मोहम्मद मुस्तफ़ा समझ के आता है, तो उसके गुनाह ऐसे झड़ते हैं कि जिस तरह दरख्त से खज़ां में पत्ते झड़ते हैं, और वो जब अज़ादारी सैयद शुहदा खुलूस से अंजाम दे के वापस जाता है तो वो ऐसे पाको पाकीज़ा होके जाता है कि जैसे शिक्म मादर से अभी पैदा हुआ हो। इसलिए मेरे रसूल ने कह दिया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, वो हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से। और दुआ भी की है, अल्लाहुम्मा हबिब मन अहब्ब हुसैन, कि अल्लाह तू उससे मोहब्बत कर कि जो हुसैन से मोहब्बत करे। अब आयत को देखो, खुदा कह रहा है कि जो इत्तिबाए मुस्तफ़ा करेगा मैं उससे मोहब्बत करूंगा, और मुस्तफ़ा कह रहा है कि मेरे परवरदिगार तू उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। तू उससे मोहब्बत कर जो मेरे हुसैन से मोहब्बत करे। क्यों? क्योंकि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझ जैसा है, मैं हुसैन जैसा हूँ। जो मुझ में है वो हुसैन में है, जो हुसैन में है वो मुझ में है। अगर 61 हिजरी को हुसैन की जगह पर मैं होता, मैं भी वही करता जो हुसैन ने किया। मैंने कह दिया, बहुत बड़ा जुमला कह दिया कि अगर 61 हिजरी में मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा होता और एक फासिक और फाजिर आकर मुझसे बैत का तलबगार होता, तो मैं भी वही करता जो हुसैन ने किया था। क्यों? क्योंकि हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब हुसैन मुझ जैसा है, मैं हुसैन जैसा हूँ, और टाइम नहीं है मेरे पास, बिल्कुल वक्त के दामन में जगह नहीं है। मुझे इशारा किया जा रहा है कि मसाइल पे आए, क्योंकि वक्त नहीं है। बस मैंने पूरे फजाइल को छोड़ता, जो जुमले कहने जा रहा हूँ नतीजे के तौर पर, कि बस रसूल खुदा ने कहा हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। हुसैन मुझ जैसा है, मैं हुसैन जैसा हूँ। बस हुसैन में जो है वो मुझ में है, मुझ में जो है वो हुसैन में है। हुसैन मुझसे है, मैं हुसैन से हूँ। अब दुनिया वालों को ये तो समझ आ गई कि हुसैन मुझसे है, यानी नाने से नवासा है, लेकिन नवासे से नाना कैसे है? तो इससे पहले भी अर्ज करते रहे हैं कि इसका माना ये है कि जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा की पहचान एक तरफ, हुसैन की पहचान एक तरफ। अल्लाह के नबी ने हुसैन को पहचानाया, कहा लोगों ये मेरा नवासा है, तुमने इससे मोहब्बत भी करनी है, इसका एहतराम भी करना है, और तुमने इसको मेरा नवासा समझ कर इससे मोहब्बत करनी है। अगर मोहब्बत करोगे ये मेरी इत्तिबा होगी। अब अल हुसैन मिन्नी का ये माना हुआ, हुसैन मुझसे है, लेकिन अना मिनल हुसैन का माना क्या है? कि सन 61 हिजरी को, कि जब मेरे दीन को मिटाया जाने लगेगा, मेरी नबूवत पे हर्फ आएगा, दीन इस्लाम की जड़ों को खोखला किया जाने लगेगा, मेरी मेहनत को मिटाया जाने लगेगा, तो फिर मेरा हुसैन उठेगा। बस मेरा हुसैन उठेगा। आज तक हुसैन की पहचान का सबब मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा था, और रोज़ आशूर से लेकर क़यामत की सुबह तक मैं मुस्तफ़ा की पहचान का सबब हुसैन इब्न अली बन जाएगा। और इसीलिए बस चंद मिनट की हिम्मत है आपकी। इसीलिए मैंने हुसैन ने भी कहा
यही कहा जब मेरे मौला से बैत तलब की गई, कहा मिस्र ला युवाए मिस्र, कि मुझ जैसा इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। वो कौन है? वो किसकी मिसल है? मैं किसकी मिसल? बस आखिरी जुमला, वो किसकी मिसल है? मैं किसकी मिसल? वो मिसल इब्लीस है, वो शैतान की मिसल, वो फिरौन की मिसल, वो नमरूद की मिसल, वो मंबे फिस्क व फुजूर। मैं आदम की मिसल, मैं नूह की मिसल, मैं इब्राहीम की मिसल, मैं इस्माईल की मिसल, मैं मूसा की मिसल, मैं ईसा की मिसल, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसा, मैं मुस्तफ़ा की मिसल, मैं आदम का वारिस, मैं नूह का वारिस, मैं इब्राहीम का वारिस, मैं इस्माईल का वारिस, मैं मूसा का वारिस, मैं ईसा का वारिस, मैं मोहम्मद मुस्तफ़ा का वारिस, मैं अंबिया जैसा हूँ, वो अल्लाह के दुश्मनों जैसा है। बस मैं हुसैन आज एक ऐलान कर रहा हूँ कि जो भी मुझ जैसा होता है वो इस जैसे की बैत नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि न आदम ने दुश्मन खुदा की बैत की थी, न नूह ने दुश्मन खुदा की बैत की थी, न इब्राहीम ने नमरूद की बैत की थी, न मूसा ने फिरौन की बैत की थी, न मेरे जब मोहम्मद मुस्तफ़ा ने मुशरिकीन की बैत की थी। बस अगर कोई मुझ जैसा होगा तो फिर उन जैसों की बैत नहीं कर सकता, चाहे उसके मुकाबले में वक्त के कोई भी शैतान की शक्ल में आ जाए। आज अगर मेरे मुकाबले में यजीद आया हो तो मैं हुसैन ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अंबिया का वारिस होकर, मैं मुस्तफ़ा का वारिस होकर ये ऐलान कर रहा हूँ कि मैं अंबिया का वारिस हूँ, इसलिए मैं यजीद की कभी भी बैत नहीं कर सकता। क्योंकि बैत का मतलब होता है किसी की इताअत को कबूल करना, और हमने इताअत करनी है मुस्तफ़ा की। और हुसैन मुस्तफ़ा का बेटा, हुसैन की इताअत मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत, और मोहम्मद मुस्तफ़ा की इताअत अल्लाह की इताअत। और बैत का मतलब होता है कि किसी की इताअत को कबूल करना। अब हुसैन से जिसकी इताअत के लिए बैत तलब की जा रही है वो फासिक और फाजिर है, वो शराबी है, वो जानी है, वो कातिल नफ्स मोहतरमा है। अब अंबिया का वारिस किसी ऐसे की इताअत कबूल नहीं करता कि जो फासिक भी हो, फाजिर भी हो, शराबी भी हो। और यही वजह है कि उलमा में से मेरे सुन्नी दोस्त इस चीज़ की गवाही देंगे, गालिबन मौलाना मौदूदी साहब से, जब ये कहा गया कि जब सब ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की थी, तो उन्होंने कहा हकीकत में ये सवाल ही गलत है, ये सवाल गलत है। ये कहना कि सब ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, सब सहाबा रसूल ने बैत कर ली थी तो हुसैन ने बैत क्यों नहीं की, कहा सिरे से सवाल ही गलत है। कहना ये चाहिए था कि जब हुसैन ने बैत नहीं की थी तो फिर दूसरों ने बैत क्यों की थी। बस खत्म कर दिया मैंने, टाइम नहीं है। बस अदालत आज हम उसी हुसैन को खराज तहसीन पेश करने के लिए कि जिसने अंबिया की मेहनत को बचाया, क्योंकि हुसैन वारिस अंबिया है, हुसैन वारिस अंबिया है, इसलिए हुसैन ने अंबिया की मेहनत को बचाया। और इस मेहनत में बड़ा खर्चा हुआ है हुसैन। करबला में लाशें गिरे, करबला से लेकर शाम तक करबला वाले काफिलों का सालार हुसैन था, और शाम वाले काफिलों के सालार या ज़ैनब कुबरा थी या मेरा मौला सज्जाद था। आंसू आ गया आपके? ये मेरा वो मौला गयूर और मेरा मजलूम इमाम है सज्जाद, कि जब मेरे मौला से पूछा गया मौला सबसे ज्यादा तकलीफ आपको कहाँ आई, मेरा मौला रो के कहता था शाम शाम शाम। कहा मौला तकलीफ कहाँ देखी? कहा शाम में देखी। कहा क्या हुआ? कहा होना क्या था, बाजार सजे हुए थे, मेरी पुत्रियां मेरे साथ थी, मेरी बहनें मेरे साथ थी, मेरी माँ मेरे साथ थी, उनके सरों पर चादरें नहीं थी, लोग छतों पर चढ़े हुए थे जिनके हाथों में पत्थर भी थे, जो खोलता
علی اللہ اجرکم علی اللہ. بس میرے مولا سجاد شام شام کہتے غیرت کا مریض بن گیا. بس عزادارو میرے مولا سجاد یہ شام کے تمام مسائل بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں میرے مولا کہتے ہیں مجھے سب سے زیادہ تکلیف شام میں پہنچی. کہا مولا کیسی تکلیف پہنچی؟ کہا اس وقت بھی بڑی تکلیف پہنچی کہ خود ملائم تخت کی سب سے اوپر والی سیڑھی پہ بیٹھا تھا, میرے بابا کا سر سب سے نیچے والی سیڑھی پہ تھا اور مجھے اور میرے باطن کو حکم دیا کہ تم زمین پہ بیٹھ جاؤ. ہم زمین پہ بیٹھ گئے اور اس سے بڑھ کے تکلیف یہ ہوئی کہ جب ہماری بڈیاں میری مائیں بہنیں ایک ہی رسی میں جب ایک ہی رسی میں بنی ہوئی تھی اور ظالم پوچھ رہا تھا کہ ان میں سے علی کی بیٹی کون ہے. بس ایک روایت پڑھ کے آپ کی زحمت کو میں تمام کرتا ہوں. عزیزانو یہ قافلہ کربلا کا جب شام میں پہنچا ایک راوی ہے جس کا نام ابن قتیبہ ہے. وہ راوی کہتے ہیں میں تجارت کی غرض سے دمشق گیا تھا اور میرے سلام میں مسافر کی حیثیت میں ٹھہرا ہوا تھا. بس مجھے شادیانوں کی آوازیں آئیں, رقص کی آوازیں سنائی دی. میرے ساتھ والے مسافر سے پوچھا کہ تم شام کے رہنے والے ہو, بتاؤ کیا ان مسلمانوں کی آج عید کا دن ہے؟ آج عید کا دن تو کوئی نہیں. وہ کہتے ہیں عید نہیں ہے. کہا پھر یہ خوشیاں کیوں منا رہے ہیں, یہ بازار کیوں سج رہے ہیں؟ کہا تمہیں پتہ نہیں؟ اس لیے کہ یزید کے خلاف کربلا میں ایک شخص نے بغاوت کی تھی جس کا نام حسین بن علی تھا. اسے کربلا میں قتل کر دیا گیا. اس کے خاندان کو آج قیدی بنا کے لایا جا رہا ہے. آج اس کی خوشی منائی جا رہی ہے. ابن قتیبہ کہتا ہے میں دربار کی طرف بڑھا, میں بازار کی طرف بڑھا. ابن قتیبہ کہتا ہے میں نے دیکھا کہ چند سر تھے جو نیزوں پہ سوار تھے. بس آخری جملہ ہے میرا, جو نیزوں پہ سوار تھے اور چند بیویاں تھیں جو بے پناہ اونٹوں پہ سوار تھی. بس عزادارو ابن قتیبہ کہتا ہے کہ میں بس اس قیدی کی طرف بڑھا کہ جس کے ہاتھ میں زنجیر تھے, پاؤں میں بیڑیاں تھی. اس نے ایک مجھ سے سوال کیا. بس یہ مجھے دیکھ کر گردن اٹھا کے کہتا ہے کہ تو ابن قتیبہ ہے؟ کہا ہاں میں ابن قتیبہ ہوں. بس کہتا میں نہیں پہچان سکا یہ قیدی کون ہے. آخری جملہ, بس میں نہیں پہچان سکا کہ یہ قیدی کون ہے. میں نے کہا قیدی تو کون ہے؟ کہا میں تیرا مولا علی ابن حسین ہوں, سجاد ہوں. اے ابن قتیبہ دیکھ اس نیزے پر میرے بھائی علی اکبر کا سر ہے, اس نیزے پر عباس کا سر ہے, اس نیزے پر میرے بابا کا سر ہے. بس عزادارو اس نے ایک جملہ کہا مولا کوئی خدمت ہو تو مجھے بتائیے. مولا پوچھتے تیرے پاس پیسے کتنے ہیں؟ کہا میرے پاس 2000 درہم ہے. کہا بس ایک سوال کرتا ہوں. کہا مولا کیا سوال ہے؟ کہا تو جا بازار میں جا کے چند چادریں خرید کے لے آ. میری پھپھیاں میری بہنیں ترسنا سر ہے. یہ گیا 1000 کی چادریں خریدی, بیویوں میں چادریں تقسیم ہوئی. ادھر سے ایک نیزہ پر ناروں کا رستہ اٹھا, انہوں نے پھر سے چادروں کو اتارا, پھر دیویا بلند کیا. لا حجاب تشریف ناسو 5:30 بجے ٹھیک کربلا میں قبلہ علامہ سید ارتجا حسین کاظمی صاحب ایک خطاب فرمے سر تمام مومنین اپنا تشریف کے ناسو ایک اعلان سن لو 5 سفر کو 29 تک مجلس آواز سی ملک میں کافی نام مرتبہ لے سر لندن نیاز وسیع سی تمام مومنین اپنا تشریف کے ناسو ہون زیارت تاکہ سو زیارت. السلام علیکم یا نبی اللہ, السلام علیکم یا رسول اللہ, السلام علیکم یا حجت اللہ, السلام علیکم یا باعث الہدی, السلام علیکم یا حبیب اللہ, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا وارث آدم صفت اللہ, السلام علیکم یا وارث نبی اللہ, السلام علیکم یا وارث موسیٰ کلیم اللہ, السلام علیکم یا وارث عیسیٰ روح اللہ, السلام علیکم یا وارث محمد حبیب اللہ, السلام علیکم یا وارث علی ولی اللہ, السلام علیکم اما حقیقت الکبریٰ, السلام علیکم فاطمۃ الزہرا, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, السلام علیکم یا غریب الغرباء, السلام علیکم یا من الضعفاء والفقراء, السلام علیکم یا مرسل الرضوان فی یوم الجلال, السلام علیکم یا انس النفوس, السلام علیکم یا حل مرسل بعز الطوس, السلام علیکم یا سلطان العرب والعجم,
علی ابن موسیٰ رضا علی بالکرم والقضاء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم یا مولانا صاحب العصر والزمان الامان 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 من فتنة الزمان. السلام علیکم خلیفۃ الرحمن. السلام علیکم شریف القرآن. السلام علیکم القرآن. السلام علیکم دافع الظلم والعدوان. حضر اللہ تعالی فرجر سہل اللہ تعالی مخرجر من امانکم صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا اللہ مجلس اللہ قبول اور منظور فرما. تمام پرسدان پرسداری اللہ داری قبول اور منظور فرما. مومنین اتفاق اتحاد یقین دولت عطا فرما. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرج آل محمد. سارے پانے کے علامہ صاحب خدا فرجن ایک امام کا مجلس نوافی واقعہ صداقت بلوچ صداقت نثاری محسن آباد کو زمین والے ٹھیک مجلس میں سی تمام مومنین واقعہ کو بلاسو اور باقی سفر کو مدرسہ کام کو لباس مولانا سبیل مجلس نوافی مولانا خادم جن بھاگری مولانا قاسم جن قلاقی افتتاح فرمائے.